Okay. So like we were discussing yesterday, basically when you are a mate and you are asked to load a vessel, then your first aim has to be that you load homogeneously. Now, what is the meaning of homogeneous? Can anybody in the class tell me what is homogeneous loading? So supposing you are on a vessel. I'm just randomly taking figures now. 50,000 ton, 5 hatch ship, 5 hatch, 5 tanks, whatever you want to call it. What do you mean by homogeneous loading? So loading all holds to the equal amount, like 90%, 98%, all hold like that. Not keeping any hold empty or partially empty, like that. So, for the sake of this thing, I'm just taking um, so 50,000 ton. You've got hold number one is 5,000 tons. Hold number two is 15,000 tons. Hold number three is again 5,000 tons. Hold number four is 10,000 tons. And balance जितना भी बचा, अगर 10 या 15 whatever is 15 had hold number 5. So basically this is the max distribution of your holds. So in some order, whichever you choose. तो homogeneous load करने का क्या मतलब होता है? Equal percentage of cargo in all the holes. Equal percentage of cargo. So that means, uh, can you clarify that sentence? Equal percentage of cargo. Say like first hold is 5,000 and number two is say 15,000. So we load number one more or less 98, 97, and equally we load in number two 9, 98, 97. This way we load all the tanks, all the holes. So basically you are maintaining a pro rata of that hold capacity. Yes, sir. Okay. Anybody else? Are you okay with that? Sir, for a given amount of volume or given amount of space, same load if we put, then we can say it is homogeneously loaded. मतलब दोबारा So just जैसे clarify करो. अब एक जगह पे अगर 1,000 टन, मतलब जैसे वो पहले बोला किसी ने, सेम परसेंटेज, वही बात होगी सर, सेम. So the question is are we talking about percentage of the weight or are we talking about percentage of the volume? That's the question. What he is not clarified. So percentage. Is it percentage of the weight or is it percentage of the volume? So percentage of weight, because in like ore carriers, capacity by volume could only be 57, 58%, but by weight it is 98%. Correct. So therefore, the weight is homogeneously distributed. Therefore, now we are coming on to ore carrier. He specifically mentioned, right? That means because I know that my hold might be just 40% loaded, but मैं already down to summer marks हो चुका हूँ because the ore cargo is so heavy that I would be down straight away
to my summer marks, even at 30% or 40% of my capacity. So we're talking now about percentage by weight. The weight is homogeneously distributed, not volume is homogeneously distributed. Okay, फर्क है दोनों में. So weight is homogeneously distributed. So when the weight is homogeneously spread, that is evenly spread, that is percentage wise spread, then we are said to be well loaded well. Okay. Now the question which comes across is the ship is designed in such a way कि लाइट शिप है नंबर वन. सबसे पहली बात तो मैंने जब जब जहाज लोड करने आया तो शी केम इन अ लाइट शिप कंडीशन. She came in a light ship condition. Now the moment the ship has come in a light ship condition, already इसकी stern trim heavy है. That means she's almost 3 meters down by stern, 2.5. Some ships are 2.5, some are 3. So अब ये 2.5-3 मीटर की stern trim लेके आया है जहाज, ठीक है. और the fact that मैंने इसकी trim को कम कर दिया है is by way of ballast. So that is my operational problem, which I managed it with my ballast, right? जिसको मैं pump out भी कर दूंगा. So I'll be back to 3 meters stern trim. Now when I start loading, if you notice that my midship is going to be hold number 4 or tank number 4. So bulk of my loading is going to happen between 1, 2, 3 and forward of 4. And 4 and 5 are going to be my aft holds or tanks. So bulk of my cargo is going to get loaded midship or forward of my midship. And lesser cargo is going to get loaded between 4 and 5. So as a result, my vessel, when she is going to be loaded, supposing 98% full, she will be almost even keel or she will be slightly down by head. So even if I was a dumb mate, I didn't know my job, मैंने ऐसे ही डाल दिया, कार्गो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेरा जहाज तो ऑलमोस्ट इवन कील तो आ ही जाएगा, if not slightly down by head. So that means only to bring her even keel on departure, I do a slight adjustment between maybe reducing number 2 and increasing number 4 or 5. That is the adjustment I do. So generally जब हम trimming करते हैं, we do either between 2 and 4 or we do 2 and 5. That depends on the vessel to vessel and जितना मेरा cargo. And for a 50,000 tonner, इधर से मैंने 500 टन निकाल लिया, इधर डाल दिया. That means इधर में मैंने कम कर दिया 500 टन 2 नंबर में, और 5 नंबर में मैंने 500 टन ज्यादा डाल दिया, मैं इवन किल हो जाऊंगा. So now comes the SFBM part of it. Now, generally by and large, when you are loaded, do you have any much room to play between your holds? You don't have. तो मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं कर सकता. That means my vessel is designed in the loaded condition for being okay within the limits. I will not exceed. जहाज बना ही ऐसा है. प्रॉब्लम मेरी कब आएगी? प्रॉब्लम मेरी आती है जब मैं पार्ट डिस्चार्ज करता हूं. अब मेरी प्रॉब्लम शुरू होती है कि ऑल राइट, मेरे एक पोर्ट पे मुझे डिस्चार्ज करना था, राइट, लेट्स से 30% कार्गो. सो अगर मैंने 30% कार्गो डिस्चार्ज कर दिया, अब जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेट्स का होल्ड, मैं तो डिपार्चर पोर्ट, लोड पोर्ट तो मैं ठीक था, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन डिपार्चर जो फर्स्ट डिस्पोर्ट है, उसके बाद क्या हालत होगी मेरी, अब मुझे वो चेक करना है. एंड दैट इज वेयर द होल ट्रबल स्टार्ट्स, बिकॉज मैं पोर्ट रोटेशन को बीट करने के लिए एंड ड्राफ्ट्स को बीट करने के लिए
तो मैं ओके कर देता हूं। लेकिन एसएफबीएम जब चेक करता हूं तो मैं एक्सट्रीमिटीज में पहुंचा हुआ होता हूं। अब नाउ स्टार्ट्स द टग ऑफ वॉर बेसिकली। हाउ डू आई, सो बेसिकली आई नीड टू प्री कैलकुलेट बिफोर हैंड। जब मैं स्टोरेज प्लान बनाता हूं लोड पोर्ट का, तो मुझे डिस्पोर्ट्स का भी बनाना चाहिए एंड चेक करना चाहिए माय ड्राफ्ट्स at each disport, my SFBM at each disport, and my cargo distribution. So some of the mates जो easiest way out देखते हैं, अच्छा ट्रिम ज्यादा हो गई है फर्स्ट डिस्पोर्ट पे, चलो जी बैलेंस ले लो। बैलेंस ले लो कहाँ ले लो, कौन से होल्ड में, ये कौन से डीबी में? अगर मेरे 2 नंबर में ऑलरेडी ज्यादा कार्गो है और मैं 2 नंबर में फिर से बैलेंस ले लूंगा, तो एम आई नॉट सैगिंग द वेसल एट दैट पॉइंट इन टाइम इन दैट पोजिशन? So I should ideally not try to take ballast in the cargo, in the hold in which I have got more cargo. I should try to take ballast elsewhere. That is what I need to check out. I need to make sure. That's where my prudence lies as a mate. समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes. So one of the things that we need to take care of is this. I was also telling you about the flexing and the extra tensile high steel. जो हाई टेंसाइल स्टील होता है एक्स्ट्रा वाला, वो फ्लेक्सिंग करता है जहाज। सो दो शिप्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव। उधर में मैं, अगर मैं नॉर्मल शिप में 500 टन की वेरिएशन करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर 200 टन की भी करूंगा तो भी जहाज जो है इमीडिएटली एसएफबीएम कर्व शूट अप करने लग जाता है एक्सट्रीम्स में। सो आई हैव टू बी वेरी वेरी वॉचफुल एंड केयरफुल ऑन द एसएफबीएम ऑन सच शिप्स। हाउ डू यू फाइंड आउट? व्हेन यू जॉइन अ शिप, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू आस्क द मेट इज, भैया कौन सा स्टील है जहाज पे? हम पूछते नहीं है, मुझे पता है, अभी तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन पूछना बहुत जरूरी है मेट के लिए। क्यों? एक तो ये है, दूसरा एक और रीजन है कि एक्स्ट्रा हाई टेंसाइल स्टील में यू कैन नॉट यूज नॉर्मल वेल्डिंग रॉड्स, यू नीड टू यूज स्पेशलाइज्ड रॉड्स, वेल्डिंग रॉड्स फॉर दैट टेंसाइल स्टील। तो उसकी इंडेंट जो करनी होती है वो भी स्पेशल करनी होती है। अगर आप एक्स्ट्रा टेंसाइल स्टील पे नॉर्मल वेल्डिंग रॉड्स वेल्ड कर दोगे, वो वेल्ड क्रैक कर जाता है, वो वेल्ड लास्ट नहीं करेगा। सो तो उसके नॉर्मली लिए, कौन से पे रहता है सर हाई 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 टेंसाइल? हाँ जी, सर कौन सी शिप्स पे रहता है सर नॉर्मली हाई ऐसा टेंसाइल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन कौन सी शिप्स पे होता है कौन सी नहीं होता है। दिस इज, जब डिलीवरी यार्ड से बनती है ना जहाज, तो उस वक्त जो ओनर्स ने स्पेसिफिकेशंस दी होती हैं उसके बेसिस पे होता है ये। क्वाइट ऑब्वियस बात है कि जब मैं एक्स्ट्रा टेंसाइल स्टील यूज करूंगा ओवर नॉर्मल स्टील, तो मेरा जो स्टील की जो मेरी थिकनेस है वो कम हो जाएगी प्लेटिंग की। एंड सिंस मेरी प्लेटिंग की थिकनेस कम होगी तो मेरा वेट भी कम होगा, तो मेरा लाइक शिप वेट कम होगा। सो देन आई कैन लोड मोर कार्गो, तो देन आई विल कॉम्पेंसेट इट बाय लोडिंग मोर कार्गो एंड देयरफॉर अर्निंग मोर फ्रेट ओवर द लाइफ ऑफ दैट वेसल। सो इट्स अ प्राइस यू पे। So, so basically that is the this thing. Most of these, like we discussed in the last class, most of the large container carriers जो बन रहे हैं वो एक्स्ट्रा टेंसाइल स्टील के होते हैं, बिकॉज स्पीड इज अ क्राइटेरिया ओवर देयर। मुझे स्पीड लेके जाना है जहाज को, इवन 0.3 नॉट्स 0.2 नॉट्स मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। सिमिलरली वीएलसीसी पे भी यूज होता है, and some of these bulk carriers also, these they are also made of extra tensile steel.
जिसपे हम ज़्यादा कार्गो कैरी करना चाहते हैं, बेसिकली वो होता है। तो ये यार्ड यार्ड मैटर्ड होता है बेसिकली बिटवीन द ओनर एंड द यार्ड, जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उस पर डिपेंड करता है। बट आपका रोल क्या है एज ए मेट? आपको जानना है कि भैया मेरे जहाज पे कौन सा स्टील यूज हो रहा है, ये मुझे पता होना चाहिए। वो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह पे लिखा होता है, तो उस पर चेक कर लो सेफ्टी कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. Okay, coming to yesterday's question, what we had done. So basically हमने ये देखा था कल कि हमने कल ये देखा था कि अगर मेरा एसएफ कर्व सपोजिंग ऐसे दिया हुआ है, तो गोल्डन रूल मुझे यूज करना है। ये मेरा एसएफ कर्व है, ए बी सी डी एंड ई। मुझे इसका बीएम कर्व बनाना है। तो मेरा गोल्डन रूल कहता है मेरा गोल्डन रूल कहता है ए टू बी राइजिंग टू द राइट, Concave up. चम्मच अप, चम्मच अप। इज दिस ओके? Yes. Is this okay? Chammach up, spoon up, Yes. banana up. B to C is parallel to the baseline. The straight line. Hmm? Will be a straight line at an angle to the base. This is a parallel to the baseline. This will be a straight line at an angle to the base. The straight line will rise to the right if area is positive. Between B Yes, and sir. C, area is positive. Yes, sir. Right. So rise Yes, to sir. the right. And C पे मुझे अपना इंस्टेंटेनियस मैक्स भी मारना है। So let's say मेरा इंस्टेंटेनियस मैक्स यहाँ पे है, supposing. So rise to the right. B to C okay है? Yes, sir. Okay. C to D, area negative, fall to the right. Concave down. So fall to the right. Coming down. D to E, rising to the right. Concave up. Chammach up. Chammach up. ये समझ में आ गया? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, वो जो हमने लिखे थे, ये दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने एक ही रूल में, एक ही केस में। तो मेरे बीएम कर्व की शेप ये बनने वाली है। नाउ ऑल आई नीड आर द वैल्यूज फॉर दिस। मेरे वैल्यूज मुझे पता होने चाहिए, वो मेरे को अब वो मैं उस। हाँ जी बोलो। बी टू सी का बता देंगे सर एक बार। बी टू सी कहाँ गया? बी टू सी, ओके। बी टू सी straight line parallel to the base will be a straight line at an angle to the base. Area under this curve will be a straight line at an angle to the base. The straight line will rise to the right if area is positive. B to C area is positive.
Yes, sir. Positive area. तो ये स्ट्रेट लाइन राइजिंग टू द राइट है, Okay. तो ये राइजिंग टू द राइट हो गया। सी पे बेस लाइन को काट रहा है, मेरा सी पे इंस्टेंटेनियस मैक्स आना चाहिए उस दिशा का। हाँ जी सर। तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस मैक्स हो गया। ठीक है सर। सी टू डी एरिया नेगेटिव, नेगेटिव, यस सर। तो फॉल टू द राइट, ओके सर। तो फॉल टू द राइट। बैक सर। एंड डी टू ई rising to the right at an angle to the base. यस सर। So chammach up, concave up, यस सर। ओके। so concave up. Because E पे फाइनली मुझे जीरो आना है, तो E पे मैं जीरो आ गया फाइनली। Yes. ठीक है, anybody any doubts? Can I erase it? Yes, sir. हाँ जी, कल के क्वेश्चन पे कोई डाउट्स या क्लैरिफिकेशंस? सर कार्गो मास सुना था हाँ जी, सर, कार्गो मास वाला पॉइंट। हाँ जी, वही तो बताया था मैंने स्टार्टिंग अभी जो करा था, वही तो सब उसी से स्टार्ट किया था मैंने। जो हाँ जी, होमोजेनियस लोडिंग वाला जो था हाँ वही तो कार्गो मास वाला ही तो, वही तो बता रहा था। sir, because once we had a problem, we loaded from Brazil and went to China. Then they said there are two ports. So they made us to, and they told us to make two plans. Part discharging in first port with only two holes. We had two grades. So from 2 and 6 they told us to discharge and then go Are to you next talking port. about, are you talking about chemical tanker? Iron ore, sir. Bulk carrier. Iron ore, bulk carrier, okay. So we made a plan, but we're having problem with that cargo mass thing. After discharging some part from number 6, that cargo mass issue was coming. So we refused to go to next port and we discharged whole cargo in the first port only. Okay. So sir, that I want to know that how after discharging some cargo, that cargo mass issue was coming. So basically, if your vessel is going to be in a ore carrier, it becomes a very common thing. So that if you load, if you are as it is in an ore carrier, so in a ore carrier, generally when I'm going to be loading, as it is, I'm going to be loading less cargo, right? So, Yes, sir. so my cargo is loaded on a ore carrier, let us say 55%. 50%, 55%, उससे ज़्यादा होता ही नहीं है, 50 से भी लेस ही होता है जनरली। तो डिपेंड करता है कि कैसे मैंने हीप्स डाली हैं। So supposing I put a cargo like this. Now the problem starts when I have to discharge.
So the part discharge, if I have to do, and I decide कि नहीं, I will do only from number 2 and only from number 5. Now that is wrong in this. If I've loaded homogeneously, then I must discharge also homogeneously. Okay, sir. So That was issue. so that is the core issue. मैंने लोडिंग तो होमोजीनियसली कर दी, अब डिस्चार्जिंग की बारी आई तो जो कंसाइनी है वो कहता है कि नहीं, मेरे को तो खाली 2 नंबर और 5 नंबर से चाहिए कार्गो। क्यों? क्योंकि मेरे को स्टीवेडोरिंग गैंग बचाना है अपना। He wants to save on his stevedoring cost. Yes, sir. So therefore he says कि नहीं, मैं तो खाली 2 नंबर और 5 नंबर से लूंगा और मैं पार्ट लूंगा। दैट मीन्स जो बचेगा मेरा, शायद कार्गो इतना बचेगा। Now the problem starts my SFBM. I've got cargo here and I've got cargo here and I've got less cargo here. So over here I'm going to be hogged very severely and I'm going to be sagged over here. Similarly, यहाँ पे situation, I'm going to be hogged severely here and I'm going to be sagged over here. So as a result, my SF and BM curve, my BM curve will be shooting to extremes over here and here. Similarly, between here and here, it will shoot to extremes. Yes, sir. Okay. So this is where my problem starts. So then you have to do a tug of war with them, with the consignee, and then the charterer gets jumped in. So therefore you have to tell beforehand that if I'm going to be loading this, especially on these ore carriers, that you have, it's a very standard thing. Okay, I want to know beforehand. Now what the charterer is doing is, or what the cargo owner is doing is, he's playing the game with the market. कि वो लोड करा के जहाज को सेल कराते हैं ताकि at sea they will sell the cargo. They are negotiating with different people. They are negotiating with 2 buyers. Let's say there will be one buyer who will be sitting, let's say, if he is in Far East, there will be one buyer sitting in Malaysia and there will be one buyer sitting in Hong Kong, and he is negotiating with both simultaneously. And to the vessel he is saying, you head for Malacca, we will see in the meantime. Now starts the problem. The buyer in Malaysia will say, I want only so much cargo, less cargo. So if you have to discharge, now you have to make sure that मैं homogeneous discharge करूंगा. Now उसके लिए उसको प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो लोडर या शूट जो भी है, उसके लिए उसको शूट को मूव कराना पड़ेगा, या उसको ट्रक्स या गैंग्स जो भी होंगे जिसमें डिस्चार्ज हो रहा है, he'll need more. या अगर क्रेन्स ऑपरेट करनी है तो क्रेन ऑपरेटर्स चाहिए उसे ज्यादा, वो उसकी एडेड कॉस्ट है, which he wants to palm it off at the risk of the vessel कि यार किसी तरीके से जहाज मान जाए, तो वो जहाज पे प्रेशराइज करते हैं. That's where your role as a mate comes in. So rather than discharging only from 2 and 5, you'll have to give him options now. All right, I can discharge, but I will discharge from 245, 246, 135. Give me more options. So that let them work on their options then. Rather than just saying I cannot discharge, you have to give options from the vessel. What are the options possible? Yes, sir. We had only 2 grades. He wants only 1 grade, and So- that was loaded in 2 holes only. So we refused straight away. We cannot do that. बिल्कुल. Then owner agreed that no problem, discharge everything here only. So then ultimately फिर जब negotiation होती है, फिर वो कहते हैं नहीं यार पूरा ही डिस्चार्ज कर दो, चलो खत्म करो कहानी. Then between buyer 1 and buyer 2, they will decide आपस में कि all right, पहले डिस्चार्ज कर लो, फिर बाद में हम ले देखते हैं कार्गो को. तो अल्टीमेटली सब बायर सब एक साथ मिल जाते हैं. इवेंचुअली सब बायर्स एक ही होते हैं. Yes, sir. वो दोनों भाई भाई होंगे और अलग अलग कंपनियां होती हैं नाम की, वो बाद में मिल जाते हैं वो दोनों. तो और जहाज पे चल रहा होता है कलेश, बिकॉज यू आर डूइंग कैलकुलेशंस आफ्टर कैलकुलेशंस एंड ऑल दैट.
चाइना में सर बहुत परेशान करते हैं And in China they do. ताइवान तक आते हैं तो बताते नहीं किस पोर्ट में जाना है. Correct. That's a very standard thing for China. Right till the last, you will not come to know. And then suddenly you're told, all right, enter into so and so river. So you have to be very, very cautious and careful over there in China. So you have to stand and firm on your ground. That is what is important for you. Very, very important. So you have to say, but मैं हिलूंगा नहीं. ये रहा ये this thing. Options दे दो उनको. Multiple options. कि all right, एक option ये है, ये discharge होगा. Second option ये है. You have to give them multiple options, by the way. Yeah? That is a must from your end. Yes, sir. Otherwise it will amount to non-cooperation by the vessel. So, Okay, sir. because ultimately, please remember, discharging and loading is your responsibility, number one, and you are supposed to discharge. If the consignee or the charterer is able to put up ये writing डाल दिया कि vessel is unable to discharge, that is your incapacity. ये कभी नहीं होना चाहिए. I am always willing to discharge, but the discharging sequence will be mine, not yours. That's the important thing. जो सीक्वेंस है वो आपने डिटरमिन करनी है और आप पहले से इन्फॉर्म करके रखोगे. ये नहीं कि लास्ट मिनट में बता रहे हो. सो ओर कैरियर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. केमिकल टैंकर्स में तो बहुत लफड़ा होता है केमिकल टैंकर्स में, बिकॉज देर आर स्मॉल स्मॉल पार्सल्स एंड ह्यूज नंबर ऑफ पार्सल्स एंड टैंक्स. सो यू आर टॉकिंग अबाउट 20 tanks, you're talking about 20 pumps, and you're talking about 40 parcels distributed over 12 grades. And each parcel is a different recipient, and each recipient wants the cargo first. This is what happens on chemical tankers. So, as a mate, you pre-decide and pre-calculate and pre-inform everybody कि भैया ये होगा सीक्वेंस. तो पहले से ही बता के रखना बहुत जरूरी है. ठीक है सर बीएम कर्व पर पूछना था सर. बीएम कर्व कब हम डिटर्मिन करते हैं कि सर पॉजिटिव एक्सिस में जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस में? जैसे अभी हम अंदाज़ा लगा रहे थे बीएम कर्व कैसे जाएगा लुकिंग एट द एसएफ कर्व. उन केसेस में जब वैल्यूज होंगी तब तो एविडेंट होगा ही, बट जब हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये इधर जाएगा, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन तो समझ में आ गया सर, बट प्लस वाई एक्सिस में कब होगा या नेगेटिव वाई एक्सिस में कब होगा सर, वो थोड़ा क्लियर नहीं है. अगर मेरा एसएफ की वैल्यू प्लस है तो मेरे बीएम की वैल्यू भी प्लस होगी. यस सर. अगर मेरे एसएफ की वैल्यू नेगेटिव है तो मेरे बीएम की वैल्यू भी नेगेटिव होगी. सर बट कुछ केसेस में देखा था कि वो ऊपर थी कर्व बीएम की. अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि BM is the resultant of SFs into the lever. तो वैल्यू मेरे को कैलकुलेशन से ही पता चलेगी, उसके अलावा नहीं पता चल सकती. ओके सर. बिकॉज सपोजिंग मेरा कोई शेयरिंग फोर्स +20 है तो +20 इंटू लीवर हो गया, और फिर दूसरा शेयरिंग फोर्स मेरा -40 है, -40 इंटू दैट लीवर हो गया. नाउ +20 इंटू अ लीवर विच इज मोर
minus 40 into a smaller lever, it is possible that the lever is larger, the first one, so the resultant will be a positive value. Yes, sir. Conversely, it is possible that my second value is larger, therefore my resultant will be negative. Supposing it's plus 20 into 2 minus 40 into 1, minus 40 into 1.5. Yes, sir. तो अब मेरा रिजल्टेंट बीएम वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. Yes, sir. तो ये मुझे खाली कैलकुलेशन से ही पता चलेगा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बीएम की वैल्यू उस पॉइंट पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो डिटरमिन करेगा मेरी हॉग और सैग, क्योंकि उसकी शेप पे डिपेंड करने वाला है. अगर मेरी नेगेटिव वैल्यू आई तो हॉग होगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो सैग होगा. सर वैल्यूज होंगी हमारे पास, बट जस्ट कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन जो है हम गोल्डन रूल से देख लेंगे, बाकी इससे वेरीफाई हो जाएगा वैल्यू से. एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक, ओके सर. बिल्कुल ठीक. वैल्यूज मेरे पास पॉजिटिव या नेगेटिव कैलकुलेशन से आएंगी, खाली मुझे कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन वो मेरे को इस रूल से पता चलेगा. ऑल राइट सर. एनी अदर डाउट? So you were saying when in exam you didn't have time, then you can just make BM curve after looking at the SF curve. So there, if we won't show the calculation of BM, we still get the marks, or You will still get the marks. You will still get the marks. Okay. वो that is just a plan B, a backup plan है वो. ये in all probability you are going to be getting the calculations, you are going to draw the curve. वो मैं खाली plan B आपको बताया है, वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने वैसे बनाना है. मैं वो खाली प्लान बी बोल रहा हूँ, जस्ट इन केस आप टाइम यू रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैंने वो प्लान बी की तरह से आपको बताया. इन रियलिटी आप कैलकुलेट करोगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैलकुलेट नहीं करोगे. ठीक है, इज दैट ओके? Yes. Okay. So basically, what we did today and we found, हमने ये देखा कि जब भी हमारी यूनिफॉर्म बीम होगी तो हमारे एसएफ कर्व जो होंगे एट एन एंगल टू अ बेस होंगे. एसएफ कर्व शायद ऐसे होगा, ये हमारा यूनिफॉर्म बीम का है. और जब भी हमारा एसएफ कर्व, जब भी हमारी लाइट बीम होगी तो हमारे एसएफ कर्व पैरेलल टू द बेस लाइन हो जाते हैं. एग्रीड? Sir, please repeat. जब हमारी लाइट बीम थी, when the beam was a light beam, तो हमारा एसएफ कर्व कैसा था? पैरेलल टू द बेस था, या पॉजिटिव था या नेगेटिव था? Yes. Okay. ये लाइट बीम में था. और जब हमारी लोडेड बीम थी, यूनिफॉर्म लोड बीम, तो हमारा एसएफ कर्व एट एन एंगल टू द बेस था.
या इधर या ऊपर से नीचे। यस ठीक है, करेक्ट। यस ओके। और इसका जो बीएम कर्व बन रहा था वो एट एन एंगल टू द बेस था। ये एरिया पॉजिटिव राइजिंग टू द राइट, एरिया नेगेटिव फॉलोइंग टू द राइट। तो इसका बीएम कर्व ये बन रहा था। इसका बीएम कर्व कर्व था, चम्मच अप चम्मच डाउन वाला फंडा। अगर ये नीचे जा रहा है फॉलिंग टू द राइट, चम्मच डाउन। फिर राइजिंग टू द राइट, कॉनकेव वन चम्मच अप। और यहां पे मैक्सिमम भी आना चाहिए, तो मैक्सिमम भी आ गया। फिर राइजिंग टू द राइट, फिर चम्मच अप, कॉनकेव अप। फिर फॉलिंग टू द राइट, चम्मच डाउन। तो इसका बीएम कर्व कर्व था विद द स्पून अप और स्पून डाउन, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन। इसका was at an angle to the base, rising up, rising down, whatever, or falling down. That is what how the so far whatever we have सर done. पहले वाले केस में अगर राइजिंग अप है, पॉजिटिव है तो राइजिंग अप है, नेगेटिव है तो राइजिंग डाउन, मतलब गोइंग डाउन है ना सर? Correct. बिल्कुल ठीक. बिल्कुल ठीक. That is what the rule we have written. Is it okay so far? This is the summary of whatever we have done so far. ठीक है? यस सर. Okay. Okay. Let us come to example 4. Okay. Can somebody just read the question, please? Sir, example 4. Yeah. A beam of mass 116 tons 6.116 tons, and length 12 meters length 12 meters. is suspended horizontally by two wires. Okay. The first wire is attached 2 meter from the left end 2 meter left end, and the second wire 4 meter from the right end. 4 meter right end. Draw the SF and BM diagrams to scale. ओके. तो अब आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, ये कौन सी बीम मैं ड्रॉ करूं? Uniform load, sir. यूनिफॉर्म लोड. क्यों क्यों यूनिफॉर्म लोड होनी चाहिए? मास गिवन है सर. बीम Correct. का मास. क्योंकि मुझे बीम का मास दिया हुआ है, इसलिए ये यूनिफॉर्म बीम है. तो मैं यूनिफॉर्म बीम बनाता हूं. दैट मीन्स zigzag बनाता हूं बीम में. अच्छा, ये बीम सस्पेंडेड है बाय टू वायर्स.
एक वायर है 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, सो लेफ्ट एंड से 2 मीटर ले लिया, ये 2 मीटर हो गया, ये सस्पेंडेड है। और दूसरी वायर है 4 मीटर फ्रॉम द राइट एंड, इधर से राइट 4 मीटर ले लो, ये सस्पेंडेड है, ये 4 मीटर है। ओके, डायग्राम समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, अच्छा 12 मीटर की बीम है, 2 ये गया, 4 इधर गया, 6 चले गए, दैट मीन्स इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस 6 है। डू यू एग्री? Yes, sir. 12 मीटर की टोटल बीम है, 2 + 4 6 चला गया, दैट मीन्स दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस 6 है। सबसे पहले आई गेट रिड ऑफ दिस डेसिमल, W is equal to mg is equal to 6.116 ton into 9.81 meters per second square. 6.116 into 10 to the power 3 किलोस, ये टन को किलो में डाल दिया मैंने, into 9.81 meters per second. This into this will give me 60 into 10 to the power 3 Newton. 60 kilonewton is equal to 60. ये यहां तक समझ आ गया सबको क्या किया मैंने? Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके, तो ये मेरा 60 किलो न्यूटन का जो वेट है, ये मेरा किस पॉइंट पे एक्ट करेगा? So center. सेंटर ऑफ द बीम, एग्रीड? सेंटर ऑफ द बीम, Yes, sir. अगर ये 2 मीटर है, दैट मीन 4 मीटर इधर, ये मेरा सेंटर ऑफ द बीम है। और यहां पे ये 60 किलो न्यूटन एक्ट करेगा, एग्रीड? Yes, sir. दैट मीन्स ये 4 मीटर है, ये लेंथ, और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये 2 मीटर है फ्रॉम सेंटर टू दिस सस्पेंडेड पॉइंट। सो 4 + 2 is making it 6. Now, next is deciding how many points would you like to operate this question with? Least number of points. Sir, 5. Yes, sir. 5. 5. Everybody agrees? Least number of points जिससे मैं ये क्वेश्चन ऑपरेट करना चाहूंगा will be 5. Yes, sir. 5. ओके, तो अब उनको नाम देने का टाइम आ गया, नामकरण करते हैं। ए, ये सस्पेंडेड पॉइंट बी, मिड पॉइंट सी, फिर से डी, और एंड पॉइंट ई। ये मेरे 5 पॉइंट हैं, और ये मेरा रिएक्शन फोर्स है, पी
क्यू, ये मेरी रिएक्शन फोर्सेस हैं। अब मैं आता हूं रिजॉल्विंग द फोर्सेस। मुझे पी और क्यू की वैल्यू चाहिए। ये काम आप खुद कीजिए। आई वॉन्ट यू टू फाइंड टेल मी द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। फिर मोमेंट्स अबाउट ए लेने पड़ेंगे कि अबाउट बी लेने हैं? अब आप सोचो, मैंने आपको रीजन बताया हुआ है। मेरा बेसिक मोमेंट्स लेने का पर्पस क्या है? मेरा सर पर्पस पी ये एंड है क्यू को रिजॉल्व करना। ताकि पी एंड क्यू को रिजॉल्व करना। एक एलिमिनेट हो जाए तो पी से ले लेंगे उसको। तो मुझे मेरे को एक को एलिमिनेट करना है। अगर एक को एलिमिनेट करना है तो मतलब मैं मोमेंट्स अबाउट पी लूंगा, अबाउट ब्रावो, ताकि मेरा पी का लीवर 0 हो जाए, ताकि मेरे को क्यू की वैल्यू मिल जाए। ये मेरा एम है, करेक्ट? यस सर। So using that logic now, क्यू 40 किलो न्यूटन सर। 20 and 40. okay. ये ओके है सबसे? एवरीबडी इज ओके विद दिस? यस सर। यस। सो पी की मेरी वैल्यू 20 आ जाती है और क्यू की वैल्यू मेरी 40 आ जाती है। बेसिकली याद रखना, जब भी कभी मोमेंट्स लोगे तो मोमेंट्स इस तरीके से लेने हैं ताकि एक वाला जो फोर्स है वो 0 हो जाए। अगर एक 0 हो जाएगा तो मुझे दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो मोमेंट्स मैं हमेशा एक फोर्स के अबाउट लूंगा ताकि वो 0 हो जाए। मैं क्यू के अबाउट भी ले सकता हूं, दैट आल्सो आई कुड हैव डन, बट जनरली हम लेफ्ट हैंड रूल फॉलो कर रहे हैं तो पी के अबाउट लेते रहेंगे हमेशा, जहां पे भी पी एक्ट कर रहा है। सर ये जो सी के अबाउट हमने जो मोमेंट्स लिया तो वो जो डिस्टेंस लिया वो ए सी क्यों नहीं लिया, बी सी क्यों लिया सर? नहीं, मैंने अपवर्ड फोर्सेस पहले लिए, तो अपवर्ड फोर्सेस पी इंटू 0 प्लस क्यू इंटू 6 हो गया। अब ये मेरे अपवर्ड फोर्सेस खत्म हो गए। अब मैं डाउनवर्ड फोर्सेस पे आ रहा हूं। तो डाउनवर्ड फोर्स मेरा 60 है, तो 60 का लीवर क्या है अबाउट पी? सर 3 नहीं होना चाहिए सर, बीसी का डिस्टेंस सर लेवर 3 नहीं होना चाहिए। नहीं, 3 कैसे हो जाएगा भाई? मेरी 6 है ना। मेरी 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 बीम 12 मीटर की है। मेरी बीम का मिड पॉइंट क्या है? 6 मीटर।
6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट। अगर ए बी 2 है तो 4 और होगा ना। सर ए बी तो देखेंगे नहीं ना, सब बी सी से देख रहे हैं ना, सब बी टू सी सर। और अगर टोटल 6 का है तो सर बी से हाफ ही होगा सर, वो 3 नहीं होना चाहिए। लेकिन 60 तो सेंटर ऑफ द बीम पे एक्ट कर रहा है ना। 60 जो एक्ट कर रहा है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है? वो L/2 पे एंटर कर रहा है ना, सॉरी L/2 पे एक्ट कर रहा है। तो L/2 पॉइंट मेरा कौन सा है? 6 मीटर वाला पॉइंट है। करेक्ट सर, 6 मीटर वाला पॉइंट। तो 6 मीटर फ्रॉम एनी साइड, आई कैन टेक इट फ्रॉम ए और आई कैन टेक इट फ्रॉम ई, कहीं से भी 6 मीटर ले लो। इररिस्पेक्टिव ऑफ कैसे ठीक है सर, सस्पेंडेड है। सपोजिंग पी और क्यू सस्पेंडेड ही ना होता, इसकी बात कर रहा हूँ। सर मूवमेंट एट ए पॉइंट लिया था तो भी आंसर सेम आ रहा है सर। हाँ जी, क्या हुआ? मूवमेंट सेम ही एट आएगा, लेकिन वो पॉइंट ए दोनों में लिया था सब्स्टिट्यूट तो भी करने सेम ही पड़ेंगे आ रहा है आपको। सर। हाँ, वो तो अब मोमेंट अबाउट ए कहीं से भी ले सकते हो आप। मोमेंट आप यू कैन टेक इट फ्रॉम एनी साइड, you can take it about a, moment you can take about any point, doesn't matter। कैलकुलेशन बच जाएगी बी से लेंगे तो। वो कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाएगी अगर मैं बी से लेता हूं तो ज्यादा आसान है, क्योंकि मैंने एक को 0 कर दिया सीधा, इसलिए। अदरवाइज आप कहीं से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये ज्यादा आसान लग रहा है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इज दैट ओके? Yes. Okay, let us stop here. I will continue from this point onwards। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है एंड काफी बार आया हुआ है, इसी की वेरिएशंस भी आई हुई हैं और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नंबर ऑफ टाइम्स, और प्लस ये हमारे बेसिक्स को पूरा क्लियर करता है। तो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स टुमारो। ठीक है? In the meantime, I want you to now go over to the exercise at the back, and I want you to do question number 1 and 2। जो पीछे में एक्सरसाइज दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। 10 क्वेश्चन है इसमें, खतरनाक है। 5 के बाद खतरनाक शुरू हो जाता है। खतरों के खिलाड़ी क्वेश्चन है सारे इसके। तो अभी प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 1 and 2 यूजिंग द सेम रूल्स जो हमने क्लास में करें। यू विल नॉट टेक 1 मीटर पे, यू विल फॉलो अवर रूल्स जो हम कर रहे हैं। ठीक है? इज दैट ओके? क्वेश्चन नंबर 1 and क्वेश्चन नंबर 2। Yes. ऑल राइट, चलो सी यू देन, बाय।